Okay, Assalamu alaikum, grade 8. How are you all? Now, from today, we are going to start geometry again. Okay? We have to do in geometry CP, right? नहीं, रिवीजन टेस्ट मैडम ने मना कर दिए थे ना सर ने कि तो बहुत ज़्यादा अब आप लोगों के रिवीजन हो गए, तो कीप योर रिवीजन बाय योरसेल्फ, ठीक है? Now we will start further work, right? You are listening? Grade 8. Yes, teacher. So much revision have been done, so that's why sir is saying that इनको आगे continue करें. Okay, so we are starting from geometry. So in geometry, chapter number 11, written on board, and name of the chapter is congruence and similarity test. Right? Give heading, prepare title page of chapter number 11 quickly, and give heading on top of the page definitions. What is the page number? Page number of the book is 343. Okay, 343 of your book, page 343. Heading number 1, congruence test. Definition, first we will do definition. Okay, mention today date, chapter number, name of the chapter, and heading definition. So here is given heading. Okay, now definition number 1, congruent. What is congruent? You have already done before. Number 1 definition, congruent. What is congruent? ये आपने जब when you were doing theorem, I told you before starting theorem, different terms. Congruent means equal or same. Right now, congruent means equal or same. It is denoted by the symbol by the symbol this symbol is used also in theorem 1, right? And do practice of this theorem. Theorem number 1 will come in your geometry portion. Who is Amna? 1 minute. Amna, Huzaifa, Abdullah. Acha, listen, student, if you want to ask any question when you are, I hope you are revising, so you can ask me any question, right? In these 3 days. You have 3 days of online classes, so you can ask when you are revising your or practicing of your
मैथ्स फर्स्ट टर्म सिलेबस. ओके, लेकिन अब we have done so much revision, that's why we are stopping your revision and starting the further work, right? Now write down definition. Congruent means equal or same, right? If it is denoted by this symbol. Now next heading is congruent shape. What are congruent shape? If two or more shape or figure having exactly same size. If two or more shape figure having exactly same shape and size are called congruent shapes. Next is similar shape. Next is similar shape. For that I have to erase this thing. Definition 1. Copy down it. Congruent shape. What are congruent? Congruent means equal shape. Looking wise भी आपको पता चल जाता है. They are, these shapes are equal. Aliza is fine. Okay, now if two or more figure having exactly same shape and having same size are called congruent shapes. Quickly copy down it. Now next heading, write down number 3, similar shape. Give heading of similar shape. Aliza, quickly copy down. We have started the new chapter, that is chapter number 11. First we are doing definition. Quickly I have to erase. Now next is similar shapes. Similar shapes. What are similar shapes? Have those figures which are having same shape, size, same shape but different in size are called similar shapes. If two or more figure if two or more figure having same shape but different in size but different in size are called similar shapes.
Write down quickly. Number 3, end of number 3. Now next, अच्छा, फिगर्स, इनकी फिगर्स भी ड्रॉ करनी है क्विकली. सारी definitions हैं. सारी नहीं होंगी, सिर्फ इनकी होंगी. कॉन्ग्रेंट शेप एंड सिमिलर शेप. कोई भी कॉन्ग्रेंट शेप बना लें आप, सर्किल ले लें और सेम कॉन्ग्रेंट शेप है, कॉन्ग्रेंट मींस इक्वल, इक्वल साइज के सर्किल ले लें या स्क्वायर ले लें जो यू कैन इजीली ड्रॉ राइट नाउ. ये मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, मेरे पास इतनी ही स्पेस है तो मैं आई यूजिंग दिस स्पेस. सेम शेप एंड सेम साइज are called congruent shapes or congruent figure. These are figures of congruent shapes. कोई भी स्क्वायर ले लें, रेक्टेंगुलर ले लें, सर्किल ले लें, इज अप टू यू. एनी शेप, स्टार यू कैन टेक. मेंशन कर लें ये हाँ 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लें, ये 3 सेंटीमीटर का कर लें, इज अप टू यू. यू नो वेरी वेल स्क्वायर हैविंग सेम साइड्स, ऑल साइड्स आर सेम. तो 4 सेंटीमीटर का दोनों आप स्क्वायर ड्रॉ कर लें. ये आ गई आपकी कॉन्ग्रुएंट शेप, राइट. these are called congruent shape. पेंसिल रूलर तो होगा, इजीली यू कैन ड्रॉ. स्क्वायर इज इजी टू ड्रॉ. सिमिलरली सिमिलर शेप कर लें. यही अगर हम कीपिंग द सेम शेप, वही स्क्वायर रख लें आप. एक ले लें आप 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर और इसमें साइज चेंज हो जाता है. ये 4 सेंटीमीटर का एक ले लें स्क्वायर और दूसरा आप ले लें बॉक्स 6 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर का ले लें. ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर का ले लें. ऑल साइड्स आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. तो ये हो गई आपकी सिमिलर शेप. और ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा लें. ठीक है, और सिमिलैरिटी का ये होता है यूं करके, ये देखें ये सिमिलर है, राइट. सिमिलर शेप. Everyone can easily draw square. That's why I have chosen one who is Asha is joining. Asha has entered in the class late. Why? Okay. Those who has joined late, I am telling you, we have started new chapter, chapter number 11, congruence test and similarity test. So first we are doing definition. Definition 1 was congruent. Definition 2 congruent shapes. Definition 3 similar shape, right? And these are their फिगर्स. वो आप डेफिनेशन के नीचे कर लिएगा, साइड में कर लें, जब टू यू, राइट. ये हो गई 3 डेफिनेशन. नाउ नेक्स्ट इज ट्राइंगल. यू नो वेरी वेल ट्राइंगल. बेटा ये सारी डेफिनेशन जो है दीज आर अंडरस्टूड डेफिनेशन. ये डेफिनेशन जो है अब आपका एक ग्रेड 9 में इंशाल्लाह वेरी सून यू विल बी इन ग्रेड 9. so you will have again math subject in grade 9. so grade 9 में जो अब जो न्यू पैटर्न आया है पेपर का, उसमें डेफिनेशन भी दे रहे हैं. इससे पहले उन्होंने कभी डेफिनेशंस नहीं दी, लेकिन अब डेफिनेशन भी इंक्लूड किए उन्होंने. तो यही डेफिनेशन आपकी ग्रेड 9 में भी कंटिन्यू होगी, राइट. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू रेज नाउ. ये मैथ्स की नोटबुक आप मिसप्लेस नहीं कीजिएगा, यही आपके काम आएंगे आगे.
मतलब आगे काम मीन्स ये कि अगर कोई हेल्प लेना चाहेंगे तो आप उसमें से ले सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज ट्राइंगल। इवन लाइन सेगमेंट तक की डेफिनेशन आ रही है गेट टाइम में। लाइन सेगमेंट, परपेंडिकुलर लाइंस, complementary angles. Now next, a figure bounded by three straight lines. Very common definition. You are learning from grade 6. टीचर आज आप विजन टेस्ट लेंगी? No. If you want to ask any question about related to your first term syllabus, ठीक है, तो यू कैन आस्क मी, वो आपको बताया जाएगा। लेकिन अब टीचर पेपर्स कब होंगे? हाँ, पेपर्स कब होंगे? पेपर्स व्हेन विल यू कम बैक टू द स्कूल? 25 को। तो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट पेपर आपका यही हो जाए मैथ्स का, ठीक है। तो कीप प्रैक्टिसिंग एट होम। वेरी सून इंशाल्लाह you will be in school. A figure bounded by three straight lines is called a triangle. ये नेक्स्ट वीक से हो रहे थे, वो नहीं हो रहे अब। शेप ऑफ द ट्रायंगल इज लाइक दिस, राइट। आप चाहे तो वर्ड्स में लिख ले या इसकी सिंबल से इसको डिनोट करने। a triangle has three sides and three angles. Angles are also called vertices. What are vertices? Common points are called vertices, right? Acha, you can draw a figure of triangle. In the given figure, टीचर ये आपने एंड में ब्रैकेट्स में क्या लिखा है? symbol of triangle. ठीक है? Vertices. लाइन सेगमेंट अभी मैं वर्टिसेस बताऊंगी, फिगर ड्रॉ करूंगी ना जब, उस वक्त बता दूंगी व्हाट आर वर्टिसेस। फिगर ए बी, साइड ए बी, इसको रीड करते हैं साइड ए बी, साइड बी सी एंड साइड ए सी आर थ्री sides. Sides are three sides and angle A, angle B. This is the symbol of angle, right? And angle C. Are three angles angles.
अच्छा, sum of, from next line, sum of all three angles of a triangle, sum of all three angles of a triangle is equal to 80 degree, 180 degree is equal to 180 डिग्री। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, दिस सिंबल इज कॉल्ड, डेट इज एंगल, यानी कि जो वर्ड्स में लिखा है इसी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलजेब्रिक फॉर्म में, एंगल ए और मैथमेटिकली प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक थ्योरम भी है, थ्योरम नंबर 5 ग्रेड 9 की बुक में मैथ्स की। ठीक है, ये देखें, ये मैं कराऊंगी भी आपको। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, definition 4 is completed till here, right? Now figure, quickly figure कहाँ ड्रॉ करें, I need space। ट्राइंगल की सिंपल ट्राइंगल फिगर ड्रॉ कर लें, मैं वो इरेज कर दूंगी, इसको कर दें। Draw simple triangle figure without any measurement but with the help of ruler। See here, I am drawing here, ताकि वो आप लिख भी लें। ये triangle, a triangle has three corners, 1 2 and 3, these three corners are called vertices, these are called vertices। जो मैं यहाँ इसमें लिखा था, ये देखें, अगर हम इसको A से डिनोट करें, because at this corner two lines are joining, एक ये लाइन ज्वाइन करिए, एक ये लाइन ज्वाइन करिए, एक ही कॉमन पॉइंट पर ज्वाइन करिए, दैट कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड vertex of a triangle, and vertices are the plural word। so A, B and C are vertices of triangle, right? and these are also called एंगल। ये एंगल भी हो गए आपकी, ये और एंगल सी। ठीक है, एंगल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? नाउ वी हैव फर्स्ट साइड, ये आपकी फर्स्ट साइड हो गई ए बी, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इट मींस ए बी, राइट? दिस इज योर सेकंड साइड बी सी, and this is your third side AC, SC ये कर लें AC। ठीक है, साइड AB, साइड BC and side AC are three sides of triangle, and angle A, angle B and angle C are three angles of a triangle, and we have three also vertices A, B and C। कोई पूछे आपसे कि what are vertices of triangle A, B and C? Vertices, what are vertices? Common point where two line segment are joining, इस पॉइंट पर, कॉमन पॉइंट पर ज्वाइन कर रहे हैं। शायान इज ज्वाइनिंग, मुस्तफा वेरी लेट स्टूडेंट। ओके, कॉपी डाउन इट, ड्रॉ द फिगर। Mustafa and Shayan, why you are coming late in online class? Okay. Now next topic, next heading is
राइट एंगल ट्राइंगल, ये तो ट्राइंगल हो गया, अब है राइट एंगल ट्राइंगल. आई होप यू all of you written number 4. That's I am rating. Those who have joined late, they can see on your पूरा मत मिटाइएगा, बस on वर्टिसेस channel. मिटा दें. You can see on your YouTube channel. ठीक है, और ओके. सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहे. ओके, नंबर 5 राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इस चैप्टर में राइट एंगल ट्राइंगल भी आएगा. राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल का साइन लगा दिया मैंने, आप चाहे तो वर्ड्स में लिख लें. Now next is, what you know very well, right angle triangle. A triangle in which one angle is 90 degrees called right angle triangle. You can write, I am dictating, you write down. A triangle in which a triangle in which only one angle is angle is 90 degree, and 90 degree angle is called right angle. Right, ये मैं लिख भी रही हूँ, राइट एंगल. ये देखिए राइट एंगल तक की डेफिनेशन आई है ग्रेड 9 में, अभी मॉडल पेपर आए, इशू उन्होंने मॉडल पेपर इशू कर दिए, तो ये इवन राइट एंगल तक की डेफिनेशन उन्होंने दी है. A triangle in which one angle is 90 degree or right angle 90 degree is called right angle triangle. राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, तो अभी ड्रॉ कर लेंगे हम. अच्छा, इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज साइड. द साइड, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री. अभी आप ट्रिग्नोमेट्री का भी चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें आएगा हाइपोटेन्यूज साइड. The side opposite to 90 degree is called hypotenuse side. Right, and this, it is the longest side of the right angle triangle. Right angle triangle. अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल को और शॉर्ट हम यू भी लिखते हैं. 9 और 10 की बुक में आपको नजर आएगा, एक ही बुक है 9 और 10 की. राइट डिनोटेड प्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर डॉट ए. ए मीन्स एंगल और ये ट्राइंगल, शॉर्ट फॉर्म है. ओके, नाउ 9 मिनट. टीचर, द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री के बाद क्या लिखा हुआ है? कॉल्ड हाइपोटेन्यूज साइड. ठीक है, ये अब मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर, शॉर्ट स्पेस है इसी में कर रही हूँ. आप भी नीचे ही ड्रॉ कर लीजिएगा. ये फिगर आ गई राइट एंगल ट्राइंगल की, कर लें. in which one angle is 90 degree, and 90 degree always, remember, 90 degree is always shown by this box.
यहाँ लिखा नहीं होता। दूसरे एंगल्स तो आपको लिखे हुए मिलते हैं इस तरह के हों, अगर फिगर में ये 60 डिग्री, ये 80 डिग्री सपोज, लेकिन ये जो है बॉक्स, ये बॉक्स खुद ही कहता है कि आई एम 90 डिग्री। ठीक है, तो ये नो नीड टू मेंशन हियर 90 डिग्री। और यहाँ पर ये 90 डिग्री ऑलवेज डिनोटेड बाय सी, कैपिटल लेटर, बाय कैपिटल लेटर, और अदर एंगल्स आर डिनोटेड बाय ए बी। इसको ए ले लें या बी ले लें, वो आपकी मर्जी। ए, दिस एंगल इज बी, ये होगा राइट एंगल ट्राइंगल, राइट, इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं हाइपोटेन्यूज साइड, द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज साइड। ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट साइड कौन सी है? ये सामने वाली। ठीक है, तो दिस साइड इज हाइपोटेन्यूज। ये पूरी ए बी जो है ये आपकी हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज साइड, और इट इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो ये हो गई राइट एंगल ट्राइंगल की फिगर, राइट, फिगर ड्रॉ हो गई, नंबर 5 हो गए। अच्छा, अब बताएं एनी क्वेश्चन अबाउट योर रिवीजन? टेल मी एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किए हैं आपने प्रैक्टिस? क्या लेंगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक फार्मूला you have done? यस टीचर, ओके। चलें, एक क्वेश्चन दूं आपको? मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। क्या? 1D में? यस, पूछें, विच क्वेश्चन बताइए, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? 1D, Raja is asking about 1D. टीचर, यस टीचर ये जो आप लिखवा रही है ज्योमेट्रिक की नोटबुक पर उतार दे सारा। जी, ज्योमेट्री सीपी में करना है सारा, ये मैंने साइड में लिखा भी है। और वर्क यू सही है, सही। 1D में जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी, मुझे हमने एलसीएम लिया, वो मुझे समझ नहीं आया। x प्लस 7/x। अच्छा, लेट्स सी। ओके, ये देखें, मैं इनको आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एक्सरसाइज 1D एलसीएम। शैल आई रेस? बताएं ऑल ऑफ यू। यस टीचर। यस टीचर। Yes. यस 1D में क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी ओपन। आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क और करके रखें, और यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन टुमारो। कीप प्रैक्टिसिंग of your math. x plus 7/x is equal to 9। ये एलसीएम समझ में नहीं आया। सी देखें, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे इसको एक फ्रैक्शन बनाना है, तो वी हैव टू टेक एलसीएम। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, अगर गिवन नॉट गिवन हो तो 1। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लें। 1 और x का एलसीएम क्या हो जाएगा? 1 और x का एलसीएम x से करेंगे, ये 1 एज इट इज, x 1 ज़ा x, तो ये हो गया आपके पास एलसीएम x। यहाँ पर x लिख लिया डिनोमिनेटर में। अब ये x जो है ये तो 1 है, कोई नंबर ही नहीं है यहाँ पर, तो ये x डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर से, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, प्लस साइन एज इट इज। अब देखें, x के टेबल में x का मैंने टाइम्स कम, x 1 ज़ा, ठीक है, उस 1 को आपने 7 से कर दिया, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 हियर 9, तो ये हो गया आपका सिंप्लीफाई होके x स्क्वायर, पावर ऐड हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू इंडिसेस लॉ, प्लस 7 1 ज़ा 7/x इज इक्वल टू 9। अब देखिए ये 1 फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, और अनलाइक टर्म्स हैं, कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड,
तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7, यहाँ पर 1 है, ये एज इट इज आ जाएगा। 1 से करेंगे वो सेम थिंग विल कम, और ये x 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय 9। अब यहाँ देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 9x, ठीक है। और फर्दर यू कैन डू इट एज इज इक्वल टू 0 कर दें, इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 9x लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, प्लस 7, और इधर क्या हो जाएगा 0 बस। और आगे सॉल्व किया नहीं, बस ये आपका आगे भी सॉल्व कर सकते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर सकते हैं, ठीक है। अगर ब्रेकिंग टर्म हो रही है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग, उससे कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त यहीं पर ही करना है, ठीक है। 1D में ज्यादातर आपने बुक बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। और एनी क्वेश्चन? व्हाट टाइम इज लेफ्ट? 2 minutes आर लेफ्ट, ठीक है। और एनी क्वेश्चन? पार्ट एज इट इज ही होगा तो इसमें पार्ट एफ, हाँ ये भी एज इट इज होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 फ्रैक्शन है, राइट हैंड साइड पे भी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। टीचर यस, टीचर कल ज्योमेट्री हो गई या रिवीजन मैथ की? नहीं डिवीजन नहीं, बस डिवीजन आपके क्वेश्चन होंगे इफ यू वांट टू आस्क, ठीक है। बस सही है। आगे कंटिन्यू ओके। करें हम, वरना हम पीछे रह जाएंगे, हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है फाइनल टर्म का, ओके। और स्वेल यू आर रिवाइजिंग एट होम, प्रैक्टिसिंग? यस यस अच्छा, एनी यस इंशाल्लाह। क्वाड्रेटिक फार्मूला समझ में आ गया? जी जी सब समझ में आ गया। समझ में आ गया। चले एक क्वेश्चन देती हूँ, जी। उसको सॉल्व करें आप, क्वाड्रेटिक फार्मूले का, ठीक है। 1 मिनट है, 1 minute इज लेफ्ट। वी कैन डिस्कनेक्ट एट एनी मोमेंट। हाँ ये करें जरा, क्वेश्चन आई एम राइटिंग। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। चलें क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, क्वाड्रेटिक फार्मूले तो जरूर आएंगे, मिडिल टर्म ब्रेकिंग, क्वाड्रेटिक फार्मूले। टीचर ये क्वेश्चन सबको करना है? हाँ करें, आप लोग सब करें, रिवाइज जल्दी से आंसर सॉल्व करके बता दें आंसर। परफेक्ट स्क्वायर रूट लीजिएगा, रफली सॉल्व कर लें आप।